Hello, future officers. Welcome to D's Coded, a channel that has been created to simplify the learning of CSAT and answer writing for UPSC civil services. Okay, so in the last video, we talked about the concept of representing any number in the form of its expanded form like this, that any number AB can be expanded as A into 10 plus B. So in the last lecture we did its illustrations and example, and today we'll do the PYQ based on these. Okay, so for that you need to take out UPSC Civil Services 2024 paper of CSAT, and we'll try and solve the questions which have been asked in that regarding this topic. Okay, let's take this paper out. Okay, so I have this paper with me 2024. ओके तो आप इस पेपर को निकालिए और क्वेश्चन नंबर 35 पे आइए. 35 क्वेश्चन नंबर. ओके, question number 35. You, after reading this question, you will realize that this type of question we have already done, and believe me, only these type of questions are asked again and again. They are just changing the values, or maybe they are just modifying it a bit. Similar type of questions would always be asked. Okay, 2024 question number 35, set A. Okay, 2024 paper, set A, question number 35. Take it out. Okay, even if you do not have the paper, the question is here in front of you, you can read it. Let x be a 2-digit number. x एक 2-digit number है और y एक और 2-digit number है, formed by interchanging the digit of x. Okay, if x plus y, यानी कि अगर दोनों नंबर को हम ऐड कर दें, it is the greatest 2-digit number, then what is the number of possible value of x? तो वो बोल रहा है कि x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी. ओके, सो पहली बात तो वो ये कहता है हमारे को कि एक 2-digit नंबर है x, तो हम x को ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू आपका 10p प्लस q. इज इट लिख सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू pq. अब दूसरा ये कहता है कि एक y एक और 2-digit नंबर है, देयर इज अनदर 2-digit नंबर y, so y can be and which is formed by reversing the digits of x. तो y क्या हो जाएगा आपका qp. तो हम y को लिख सकते हैं 10q plus p. Now it says that if we add x and y, we get the greatest 2-digit number. Now greatest 2-digit number is 99, isn't it? So now using these expanded form, we'll try to equate this one and add these and equate it. Okay, so we can write it down as 10p plus q plus 10q plus p is equal to 99, isn't it? We have all, after adding this would come, so it would come out to be 11p plus 11q is equal to 99. Okay, so this gets cancelled out and we are left with 9. So we can say that p plus q is equal to 9. Okay, so the question says that what is the possible values of x. तो मुझे x बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, p और q, isn't it? Because x is equal to pq. तो मुझे x बनाने के लिए ये दो डिजिट चाहिए, p और q. सो मैं p और q की वैल्यूज़ निकालूंगा यहाँ से. तो मैं क्या करूँगा, वैसे ही जैसे हमने पहले भी इस तरीके के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो हम लिख देंगे p को यहाँ और q को यहाँ और 9 यहाँ. तो हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिनको ऐड करने से आपके पास 9 बन जाए. ठीक है, तो यहाँ तो सिर्फ एडिशन है आपके पास ना. तो अगर मैं p को 1 ले लेता हूँ, ये डिजिट्स जो हैं लाए करेंगे p और q आपके 1 से 9 के बीच में, ये 0 नहीं हो सकते. ठीक है, तो अगर आपके पास p1 है तो q कितना हो जाएगा 8, और ये अगर 2 है तो ये हो जाएगा आपके पास 7 9 बनाने के लिए. अगर ये 3 है तो ये 9 बनाने के लिए 6 हो जाएगा. अगर ये 4 है तो ये 9 बनाने के लिए 5 हो जाएगा आपके पास. एंड इफ़ यू हैव 5 देन टू मेक 9 दिस वुड बी 4.
and if you have 6 to make 9, this would be 3, and if you have 7 to make 9, this would be 2, and if you have 8, then to make 9 you have 1. So now count these values: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so now x is equal to pq. So pq itself has 8 values, so x would also be having 8 values, so your answer would be 8D. I hope this question is clear to you. This type of question we have already done. Okay, this is nothing but that type of question only. Okay, now let's move on to question number 48 of this paper only. I'll take this question out for you and you just read it for some time and then we'll start solving it. Okay, the question goes like this. The question is like this, question number 48. Read it and try to solve it on your own if you can. You'll be able to solve it. If you have revised that video again, then you would be able to solve it very easily, because all the questions which I have designed are based on the PYQs only. We have done this type of question already. Okay, now let's solve it. Okay, so this says that the sum of 2-digit numbers in A, B and C, D is a 3-digit number 1CE, where letters A, B, C, D, E denote distinct digits. Then what is the value of A? Okay, so ये कहता है कि हमारे पास 2 2-digit नंबर हैं A, B और C, D, ठीक है, जिसको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास एक 3-digit नंबर आ जाता है. तो कुछ नहीं है, ये आपको इसको ऐसे लिख देना है कि भाई AB प्लस CD ये मेरे पास आ जाता है आपका 1CE. ठीक है, आ गया आपके पास. अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए आप. तो 10A प्लस B प्लस 10C प्लस D इज इक्वल टू 100 प्लस 10C प्लस E. ठीक है, ये E हो गया. अब 10C से 10C तो वेट, एक मिनट दोबारा से, एक मिनट रुकिए, लेट्स डू इट अगेन. ओके, इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं हम. ओके, सो वी कैन राइट इट ऑन एक्सपेंडेड फॉर्म एज 10 इंटू A प्लस B प्लस 10 इंटू C प्लस D इज इक्वल टू 100 प्लस 10 इंटू C प्लस E. ठीक है, हमारे को दिया हुआ है कि इनका समेशन जो है एक 3-digit नंबर में आता है. 10C से 10C तो कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास अब बचेगा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. तो वी कैन सी दैट 10A प्लस B प्लस D इज इक्वल टू 10E बचेगा हमारे पास. तो हमें इनको यूज़ करके एक 3-digit नंबर बनाना है 10E जो है 100E. तो आप देखोगे कि इन दोनों को ऐड करने से तो मेरे पास ये E और ये 0 बन पाएगा. और मुझे अगर ये 1 बनाना है यहाँ पे, मतलब 100 की फॉर्म में लाना है यहाँ पर, तो मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना पड़ेगा. ठीक है, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना है तो मुझे A की मैक्सिमम वैल्यू लानी पड़ेगी. तो A की मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 से लेके 9, क्योंकि सारे डिजिट 1 से लेके 9 तक लाया करते हैं, 0 से 9 तक लाया कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम A को 0 लेंगे नहीं. तो 1 से लेके 9 में, 1 to 9 में A की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 होगी. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली 9. गेटिंग? सो दीज 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन 2024. नाउ we'll move on to question paper of 2023, okay, and solve these type of questions from that paper. Okay, so this is 2023 question paper set A,
You take out question number 28. It says that each digit of a 9-digit number is 1. कोई एक 9-digit नंबर है हमारे पास जिसकी हर एक डिजिट जो है वो क्या है आपके पास 1 है, ठीक है। एक 9-digit नंबर है जिसकी हर एक डिजिट है वो है 1 है वो, गेटिंग। इट सेज दैट इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। जो ये 9-digit नंबर है ये खुद ही से मल्टीप्लाई हो गया अपने आप। देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द रिजल्टिंग डिजिट। तो अब इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है कि एक 9-digit नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो उसके सम ऑफ डिजिट आए वो क्या होंगे। मतलब एक 9-digit नंबर समझ लीजिए x है, तो इसको लिखा ऐसे गया कि 1 को 9 बार लिख दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर कुछ नहीं किया, फिर x को x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो नंबर आया आपके पास उनके जो डिजिट्स हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे तो सम क्या बनेगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा अपने आप में। तो हम इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं एक बारी। समझ लीजिए हम एक नंबर लेते हैं जो 11 था। अगर मैं 11 और 11 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 121 आता है, गेटिंग। अगर मैं 111 को 111 से हम इसको मिनिचराइज कर रहे हैं, इसको छोटा करके देख रहे हैं कि क्योंकि एक सेम टाइप ऑफ पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो अगर 2-digit नंबर पे भी इसको लगाएंगे या 3 पे भी लगाएंगे तो सेम टाइप ऑफ चीज़ ही मिलेगी हमें एक तरीके से। तो देखते हैं क्या बनता है। तो 111 इंटू 111 आपके पास बन जाएगा 1231। सिमिलरली अगर मैं 4 टाइम्स 1 लिखता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 4 टाइम्स 1 से, तो ये बनता है 1 2 3 4 3 2 1। और मैं 5 टाइम लिख के देख लेता हूँ पैटर्न चेक करने के लिए कि क्या ये सेम टाइप ऑफ पैटर्न रिपीट हो रहा है मेरे पास। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1। तो हम देख सकते हैं कि जब भी अगर आप 2 डिजिट्स को लिख रहे हैं तो वहाँ बीच में 2 आ जा रहा है, उसके आसपास 1 आ जा रहा है। और ऐसे ही अगर आप 3 डिजिट को लिख दे रहे हैं तो बीच में 3 आ जा रहा है, सॉरी ये आएगा 3 2 1, और आसपास 1 और 2 आ रहा है। ऐसे ही 4 डिजिट को लिख रहे हैं तो अब बीच में 4 आ रहा है, आसपास 3 2 1 आ रहा है। 5 में भी ऐसा हो रहा है, देखिए कि बीच में 5 आ गया और 4 3 2 1 4 3 2 1। तो 9 के केस में भी ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर मैं x इंटू एक्स कर दूंगा कि मतलब 11 टाइम्स 9 लिख के 9 टाइम्स 9 लिख के और आपको 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई कर लूँगा x इंटू एक्स जो मेरा यहाँ था, तो ये आ जाएगा आपका, हम 9 को बीच में लिख देते हैं तो आपका आ जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और यहाँ भी आ जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। नाउ इट्स, ये हमें कहता है कि आप इन सब डिजिट्स को ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए आप, 1 से लेके यहाँ तक ये नेचुरल नंबर्स हैं और ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, है कि नहीं, और ये 9 अलग से हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो सेम है मेरे पास। तो अगर मैं इनमें से किसी एक को ऐड करके 2 टाइम्स कर दूंगा तो मेरे पास वो आ जाएगा, और उसमें अगर हम फिर 9 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इस वाले को y मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को जब आप ऐड कर दो तो 2y हो जाएगा प्लस 9। तो हमें बेसिकली चाहिए अब 2y प्लस 9 चाहिए हमें, जिससे मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो अब ये आप नेचुरल नंबर्स ये देख रहे हैं, आपकी ये नेचुरल नंबर्स हैं। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास जिसको आप याद कर सकते हैं कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला मेरे पास होता है, क्या होता है वो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर n होगा लास्ट नंबर, यहाँ लास्ट नंबर 8 है, ठीक है। तो मेरे पास अब पर मुझे चाहिए 2y, तो ये तो हो गया y सम जो आएगा इसका, और मेरे को चाहिए 2y। तो मतलब मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास 2y आ जाएगा, पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो मुझे सिर्फ फाइंड करना है n इंटू n प्लस 1 को।
ये आपका हो जाएगा 8 लिखिए, और 8 + 1 तो 9 × 8, ये आपका हो जाएगा 72। बट ओवरऑल मुझे फाइंड करना है 2y + 9। तो ये आपका 2y है एक्चुअली में, है कि नहीं, क्योंकि ये y था n × n + 1/2 और वो 2y चाहिए था मुझे, तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास सिर्फ ये बचा। तो ये n × n + 1 ये 2y है। अब मुझे इसमें 9 ऐड कर देना है बस, तो मैं 72 में 9 ऐड कर दूंगा तो मेरा आएगा 81। तो इसका आंसर है आपका C 81। गेटिंग? चलिए ठीक है, डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। Your next question will be question number 16 of the set A of the same paper 2023 set A question number 16 निकालिए। जिसके पास नहीं है वो इससे कर सकता है, यहीं से देख के पढ़ सकता है, उसको सॉल्व कर सकता है। ओके, बट आपके पास होना चाहिए वो। Now the question goes like a 3-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD। ओके, आपके पास एक 3-digit नंबर है, ओके, ABC, उसको मल्टीप्लाई किया आपने D से, तो आपके पास एक 4-digit नंबर आ गया 37DD, वेयर A, B, C, D आर A, B, C, D क्या है आपकी डिस्टिंक्ट डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब A, B, C, D में से कोई भी जीरो नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आपके पास आ जाएगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A + B + C पूछता है कि क्या बनेगा A + B + C मेरे पास, ठीक है। तो मेरे को दिया है एक 3-digit नंबर ABC, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया D से, तो मेरे पास आया 37DD, isn't it? तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ABC लिखता हूँ यहाँ तो, और इसको मैं एक्सपैंड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे वो कर लेते हैं 3700 + 10D + D, और जो ये वाला D था यहाँ, मैं इसको यहाँ पे लाके से डिवाइड कर देता हूँ। हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ABC जो था आपके पास वो मेरा बन गया यहाँ पर 3700 डिवाइडेड बाई D + 11D डिवाइडेड बाई D। ये D से D कैंसिल आउट हो गया, isn't it? तो अब मुझे फाइंड क्या करना था, A + B + C करना है, पर अगर मैं इसको सॉल्व कर, अब मुझे सिर्फ D की वैल्यू से खेलना है। अगर मैं अब मुझे सिर्फ D की वैल्यू से खेलना है, ठीक है। तो फिर मेरा ABC आ जाएगा यहाँ से। अगर मेरा ABC आ गया तो वो A, B और C मेरे तीनों डिजिट पर लग जाएंगे, उनको ऐड कर दूंगा, मेरे पास सम आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक चीज़ यहाँ देखते हैं कि ये D की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये जो 3700 डिवाइड बाई D है ये पूरा कंप्लीट नंबर आए, डेसिमल में या फ्रैक्शन में ना आए, यानी कि एक इंटीजर आए अपने आप में, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे डिफरेंट D की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है, कि D की वैल्यू भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता है। D कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 1 to 9 and I do not know the value of D. D can be any value from 1 to 9. सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं एक बारी हम। तो 3700 डिवाइडेड बाय D को ले लो सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि D की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से लेके 9 तक मुझे नहीं पता है वो क्या होगी। तो मैं चेक कर लूँगा कि D की ऐसी वैल्यू जिसमें मुझे 3700 डिवाइड बाई D एक इंटीजर मिले,
फ्रैक्शन में ना मिले, ना ही उसमें मिले, क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट में। तो अगर D1 है तो ये 3700 आ जाएगा, अगर D1 है तो ये सीधा 3700 आ जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर मैं D को 2 भी ले लूँगा तो भी ये करेक्ट आ जाएगा, मतलब आपका आ जाएगा ये आप 3700/2, ये कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा इसे। मैं D को 3 ले लेता हूँ अगर, तो ये नहीं कर पाएगा, आप चेक करो इसको, ये नहीं कर पाएगा इसे। ठीक है, अगर मैं आपका D को मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3700 डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी कट जाएगा, जैसे कि 4 9 36, फिर 1 बचेगा तो 25 से वो वहाँ से कट जाएगा, तो ये भी कट सकता है। ठीक है, 4 से भी हो जाएगा। तो D = 5 पे चेक करें तो D = 5 पे भी कट जाएगा। अब D = 6 पे चेक कर लीजिए, वहाँ नहीं कटेगा ये। ठीक है, वहाँ पे आपका कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगा। आप D = 7 पे चेक करेंगे, वहाँ भी कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगा। D = 8 पे चेक करोगे, वहाँ भी कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगा। D = 9 पे आप चेक करोगे तो वहाँ भी कंप्लीट इंटीजर नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिए जाए करके। ठीक है, तो जहाँ पे कंप्लीट इंटीजर आ रहा है वो वैल्यूज़ हैं D = 1, D = 2, D = 4 और D = 5। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास जैसे ही आ गया है ABC = 3700D + 11, ओके, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे इसमें वैल्यूज़ में बस 1 इन वैल्यूज़ में मुझे D को 1 2 4 और 5 पे चेक करना है बस, कि कितनी वैल्यूज़ आती हैं ABC की। वो सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू जिसमें भी आ जाएगी वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले D = 1 डालते हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास आ गया ABC = 3700 डिवाइड बाई D + 11। ठीक है, अब इसको आप हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मेरे पास, यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्योंकि D की वैल्यू पता लग गई है कि D की वैल्यू सिर्फ मेरे पास रहने वाली है D = 1, 2, 4, 5, इसी पे मुझे चेक करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे ABC = 3700 डिवाइडेड बाई D + 11। अगर हम D को 1 लेते हैं, D को 1 पुट करके देखो, इसमें आपके पास आंसर आएगा 3700 + 11। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3711। और तो ABC तो आपका आना चाहिए 3 डिजिट नंबर, पर यहाँ 4 डिजिट आ रहा है, तो D = 1 को निगलेक्ट कर देंगे हम। फिर से देखो ABC = 3700 और D की वैल्यू 2 ले लो + 11, तो ये आएगा आपका, डिवाइड करेंगे इसे तो आ जाएगा आपका 1850। तो 1850 + 11 कर लो, आपके पास आएगा 1861। ये भी 4 डिजिट है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ABC = 3700, अब मेरे पास 4 बच गया, क्योंकि मेरे को ये लेनी है D की वैल्यूज़ 1 2 3 4, डिवाइड बाई 4 + 11 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अब यहाँ पे आपके पास यहाँ आ जाएगा, यह आया था आपके पास 740 को काटोगे तो 740, 740 + 11, तो ये आपको देगा 751। पर आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए कि ये A हुआ, ये 3 डिजिट आ गया, ठीक है, तो इसको ले सकते हैं, B और C हुआ ये। बट आप देखोगे कि सॉरी 1 मिनट जैसे ये गलत हो गया थोड़ा सा हमारा, 1 मिनट रुकिए आप, सॉरी 3700 4 से था ना, + 11, 4 से आप काटोगे तो इसके पास आपको आएगा
4 9 36, ठीक है। फिर आपका 1 यहाँ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 और फिर ये 5, तो ये आपका बन जाएगा 925 + 11, तो ये आपका बन जाएगा 936। तो ये एक 3 डिजिट नंबर है तो इसको आप ले सकते हो। तो यहाँ पर a = 9 हो गया, b = 3 हो गया और c = 6 हो गया। पर मेरे पास 5 बचा हुआ है, अभी मुझे 5 से चेक करना होगा पहले, ठीक है। 3700 डिवाइडेड बाय 5 + 11 करेंगे। तो आप इसको 5 से काटोगे तो आपके पास आएगा 7 5 35 और ये 4 और 0, तो आपके पास आएगा 740 + 11, ये आपका बन जाएगा 751। यहाँ a = 7, b = 5 और c = 1 हो गया। तो आप यहाँ देखोगे कि d भी पहले से 5 था और b भी 5 आ गया, और मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है कि इन सबकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। तो b = d = 5 नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इस वाले ऑप्शन को कंसीडर कर लेंगे। सो इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए मेरे पास a आ गया आपका क्या, a आपका आ गया 9, b आपका आ गया 3 और c आ गया 6। अब इसको ऐड कर दीजिए, 9 और ये भी 9, तो 9 + 9 18, तो इसका आंसर a हो जाएगा 18, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ विल मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन ऑफ दिस सेट A only of 2023 पेपर। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 निकालें आप इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सेट A। इस क्वेश्चन को आप रीड करो इतने और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। Try to solve it on your own. You can do it, yes, because we have already done these type of questions. It's not a new type of a question, okay. The question says that if A, B, C and D, E, F are 3-digit numbers such that A plus B, A, B, C, D, F are distinct non-zero digits such that A, B, C plus D, E, F is equal to 1 1। मतलब 2 3-digit नंबर को जोड़ने से एक 4-digit नंबर बन रहा है। इसमें कुछ नहीं, इसमें भी वही टेक्निक हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन वाली, जो हमने पहले यूज़ करी है कि हम कंपैरिजन ड्रॉ करके वैल्यूज़ निकालते हैं। ये दे रहा है कि A, B, C, D, E, F ये 1 से लेके 1 to आपका 9 तक लाया करेंगे आपके, ठीक है। आपके ये लाया करेंगे 1 से लेके 9 तक, ओके। ज़ीरो वैल्यू नहीं होगी किसी की भी। तो मेरे पास ये आ गया, मेरे को दिया है ABC + DEF इज इक्वल टू 1 1 1 1, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेता हूँ, कुछ नहीं करना, मुझे फिर से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेना है कि 100A + 10B, सॉरी वेट अ सेकेंड, 10B + C + 100D + 10E + F इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा वही आपका जो है 1000 + 100 + 10 + 1, ठीक है। तो अब जो भी 100 वाली टर्म्स हैं और 10 वाली टर्म्स हैं उनको साथ लिखें और दूसरी, क्योंकि इससे ही जुड़ के वो नंबर बनेगा। आपको पता है हमें जो बनाना है वो बनाने के लिए हमें इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो 100 टाइम्स A + D + 10 टाइम्स B + E + C + F इज इक्वल टू 1000 + 100 + 11, ओके। अब देखो
ये बनेगा 4 डिजिट नंबर। इस मतलब इसको ऐड करके आपको ये 4 डिजिट नंबर बनाना है 1111 यहाँ पर। ओके, सो अब यहाँ तो 10 है और इन डिजिट्स का नंबर किसी भी तरीके से आप ऐड कर लो, ये आपको यहाँ पे नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। और जो ये डिजिट्स हैं यहाँ पे पहले से 100 है, तो यहाँ पे 1000 लाने के लिए मुझे इन्हीं दो डिजिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ 1000 लाने के लिए मुझे इसको a प्लस डी को 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये पहले से 10 है, तो b प्लस ई को मेरे को यहाँ पे भी 100 लाने के लिए b प्लस ई को 10 लेना पड़ेगा। तो फिर मेरा c प्लस एफ यहाँ से 11 हो जाएगा। गेटिंग? अब आपको पता लग गया कि a प्लस डी 10 है, b प्लस ई आपका 10 है और c प्लस एफ 11 है। तो अब चेक कर लो इसको डाल के एक बारी। तो मैं यहाँ चेक करता हूँ कि 100 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 11, तो मेरे पास आ गया 1000 प्लस 100 प्लस 11। ये सेम ही है इसकी तरह, तो मतलब मैंने जो ये लिया है वो सेम आ गया। तो कुछ नहीं करना, कुछ क्वेश्चन में आप कंपैरिजन करके भी आराम से आंसर पे अराइव कर सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ ये करके। जैसे आपने इसको एक्सपेंड कर लिया 100a प्लस 10b प्लस c, और इसको 100d प्लस 10e प्लस f, और इसको एक्सपेंड कर लिया 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। अब 100 वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया a प्लस डी, 10 को एक साथ लिख लिया b प्लस c, और इसको c प्लस f। अब दोनों साइड को कंपेयर करो कि ये मुझे 4 डिजिट नंबर लाना है ये वाला, तो उसके लिए मुझे इसको 1000 बनाना पड़ेगा। इसको 1000 बनाने के लिए मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1000 आ गया। इसको 100 लाने के लिए मुझे इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 आ गया। और इसको 11 c प्लस एफ को ऐड करो 11 बन गया। तो अब आप मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, तो मेरे पास आ गया a प्लस डी, ठीक है। और हमने इसको यहाँ पे पुट करके वेरीफाई कर लिया, तो हमारा वेरीफाई हो गया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे a प्लस डी प्लस b प्लस ई प्लस c प्लस एफ। तो ये हमारे पास आ गया 10 प्लस 10 प्लस 11। पूछा था मेरे से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या मिलेगा मुझे, तो आप इन सबको ऐड कर दो। ये a प्लस बी हो गया, ये आपका d प्लस ई हो गया, c प्लस एफ हो गया। तो आपका बन गया 10 प्लस 10 प्लस 11, तो आपका बन गया 20 प्लस 31। तो इसका आंसर आपका डी होगा 31। गेटिंग इट क्लियर? सो दिस वाज आल्सो a very easy question, isn't it? Question number 9. So now we'll move on to the next question, that is question number आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। आप इसको खुद पढ़ के कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है, पर हमने मैक्सिमाइज करने के लिए किया था उसे, ठीक है। ये कह रहा है D is a 3-digit number such that the ratio of the number of the sum of its digits is least. What is the difference between a digit at the 100th place and a digit at the unit place? तो कुछ नहीं है, एक 3-digit नंबर है, समझ लीजिए दैट चीज़ ए बी सी एक 3-digit नंबर है। तो उसके सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये कहता है कि ए बी सी को अगर हम डिवाइड करते हैं a प्लस बी प्लस सी से, तो ये लीस्ट आना चाहिए रेशो इसका, ठीक है। और अगर ये लीस्ट है तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिजिट एट द 100th प्लेस एंड डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो ये कह रहा है कि जो 100th प्लेस की डिजिट है और यूनिट प्लेस की डिजिट है उसके बीच का डिफरेंस हमारे को इसमें इसने पूछा हुआ है कि c माइनस ए क्या होगा उसके बाद, ठीक है। तो हमने एक ऐसा क्वेश्चन पहले किया था जहाँ पे हम इस रेशो को मैक्सिमाइज़ कर रहे थे। तो हमने देखा था कि मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमें ये सबसे ज़्यादा करना होगा और ये जितना कम हो सकता है उतना कम करना होगा। पर हेयर इट इज़ टेलिंग अस टू मिनिमाइज दिस। सो टू मिनिमाइज दिस, हम व्हेन वी हैव टू मिनिमाइज दिस, सो वी हैव टू मेक दिस एज द लीस्ट।
ओके, एंड वी हैव टू मेक दिस एज मैक्सिमम। इसको आप मैक्सिमाइज कर दो और इसको सबसे कम वैल्यू ले आओ, तो आपका रेशो लीस्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अगर जैसे आप ये ले लो कि 1/2 है और 1/3 है, तो जितना नंबर नीचे वाला ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका आंसर अपने आप कम हो जाएगा रेशो। जैसे आप इसको करोगे तो आपको 0.5 मिलेगा, और इसको करोगे तो 0.33 मिलेगा, और अगर 1/4 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये क्या 0.25। तो ये और कम होता जा रहा है ना, तो जितना ज़्यादा ये ज़्यादा होगा उतना ही रेशो कम आएगा। तो मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है और इसको मिनिमाइज करना है। तो 3 डिजिट नंबर तो आपके 100 से शुरू होकर आपके 999 तक जा सकते हैं। तो मैं ये वाले को नहीं लूँगा, इसको हटा दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है। तो मिनिमाइज़ करने के लिए हम लेंगे 100 वाली लाइन के नंबर्स। तो हम ये चेक करते हैं कि 100 वाली लाइन के नंबर्स में ये मैक्सिमम कहाँ आ सकता है, इसका सम। ओके, और ये मिनिमम कहाँ आ सकता है। समझ लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ 199 का। सो अगर आप 200 से पहले की बात करेंगे, 100 से लेके 199 तक, तो यहीं पर आपका जो ये है वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नीचे वाले को मैक्स करना है और ऊपर वाले को भी मिनिमम रखना है, तो वो 100 से वहीं तक मुझे रखना होगा। ठीक है, तो अगर आप 100 ही ले लोगे उसे, समझ लो आप 100 ले लेते हो ABC को, तो 100/100 तो 1 रेशो आ गया, तो 100/1 तो ये 100 आ जाएगा। तो ये नहीं ले सकते हम, तो हमें इसको मिनिमाइज करना है और इसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये मैक्सिमम आ रहा है 199 पे। जैसे कि अगर आप 198 भी ले लो तो ये आपका आएगा 18, पर 199 पे 19 आ रहा है, और 19 से ज़्यादा फिर ये कब आएगा? सबसे ज़्यादा नहीं आएगा, 100 से 199 के बीच में कहीं और ज़्यादा नहीं आएगा, सिर्फ 199 पे ही ज़्यादा आएगा। तो आप A + B + C को 199 ले लो, सॉरी 19 ले लो, 1 + 9 + 9, तो ABC आपका 199 हो गया। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हो कि इसी का रेशो लीस्ट आएगा इसमें, क्योंकि ये मुझे मिनिमाइज़ करना है और ये मैक्सिमाइज़ करना है, और ये मैक्सिमाइज़ कहाँ हो रहा है? 199 पे। जैसे कि 1 + 9 + 9 19 हो रहा है। तो बस मेरे पास अब ये आ गया है। C की वैल्यू आपकी हो गई ये 9, और A की वैल्यू हो गई 1। तो आपको मुझे C - 1A करना है, इसका मतलब 9 - 1, तो ये आपका 8 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है C आपके पास। ठीक है, so now we will move on to the next question, okay, of this 2023 paper. Now we'll move on to next question, and this is question number आपका निकालिए आप क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 76, question number 76. So this is the question 76. Try to read it on your own. Okay, I have zoomed it for you. Now read this question and we'll solve it. Okay, read this question and we'll try to solve it. Okay, so the question is, AB and CD are 2-digit numbers. Multiplying AB with CD results in a 3-digit number DEF. Adding DEF to another 3-digit number GHI, the resultant is 79975. Okay. Further, A, B, C, D, E, F, H, I are distinct digits. If E is equal to 0 और NF is equal to 8, then what is the value of A + B + C? आप देख सकते हैं उसी टाइप की क्वेश्चन है
या तो ये डिजिट्स को फाइंड करवा रहा है नंबर को। आप अगर इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जो इलस्ट्रेशन दिए उन्हें PYQ को भी, और बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगली बार 2025 में भी आएगा वो आप आराम से कर लोगे इसका। आई कैन गारंटी यू दैट, बट यू नीड टू कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिवाइजिंग दिस क्वेश्चंस again and again. Then the pattern would be fixed in your mind and you'll be able to solve it very very easily. Okay, so now we have कि आप we are given that AB into CD. Okay, AB को CD से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया D F और E की वैल्यू मेरे पास दी हुई है, तो D08 आया मेरे पास। ओके, फर्दर इट सेज दैट adding DEF to another 3-digit number GHI result in 975. ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ये था D08 और मैंने इसको ऐड कर दिया आपका DEF, तो मेरे पास आया 975। ओके, अब इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको कंपैरिजन देखना है कि 2 डिजिट नंबर को ऐड करने से 3 मतलब जो डिजिट्स यूनिट प्लेस पे हैं, जैसे कि यूनिट प्लेस पे ये हैं, यहाँ पे ये हैं, तो क्या आता है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, तो अगर यहाँ पर 8 था तो इसमें ऐसा कैसा नंबर ऐड करें कि यहाँ 5 आ जाए, तो इसका मतलब मुझे इसको 15 बनाना पड़ेगा। 15 बनाने के लिए मुझे F को क्या लेना पड़ेगा, 8 में मैं क्या ऐड करूँ कि 15 बन जाए, तो मुझे F को लेना पड़ेगा, सॉरी I को, I था ना आपका वो, सॉरी D8 और GHI है, सॉरी ये गलत हो गया। एक मिनट दोबारा से करेंगे इसे, रुक जाइए एक मिनट दोबारा से, सॉरी ये गलती हो गई। ये था आपका कि DEF में मैंने ऐड अगर कर दिया था GHI, तो मेरे पास आया था ये नंबर आपका 975। तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ। DEF की वैल्यू मुझे पता लग गई है थोड़ी सी कि D08 है ऊपर से, और ये GHI दिया था मेरे पास, ये आपका था 975। तो आप ये देखो अब यहाँ कि यूनिट रेट में यहाँ 5 है और यहाँ 8 है, तो इसको 5 तो ये 8 से किसी तरीके से नहीं बन सकता, तो मतलब ये 15 रहा होगा यहाँ पर, और ऊपर एक कैरी फॉरवर्ड आ गया होगा 1 पे। ठीक है, तो व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर इज कि मैं इस 8 में क्या ऐड करूँ कि 15 बन जाए, तो 8 में आप 7 ऐड करोगे तो 15 बन जाएगा, तो इसका मतलब I मेरा यहाँ पर 7 हो जाएगा, और फिर एक जब ये 15 हुआ तो एक कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा, तो इसका मतलब 0 जो यहाँ पर है और ये H है, ये किसी ऐसे नंबर को एक यहाँ से तो कैरी फॉरवर्ड देखो 0 प्लस H, और एक मेरा कैरी फॉरवर्ड होके 1 आया ऊपर का, ये मेरा आपका 7 बना यहाँ पर, इसका मतलब। ठीक है, तो ये तो 0 है, ये H है, ये 1 है, तो मेरा H की वैल्यू भी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 6। आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर जैसे कि ये तो मेरा 8 प्लस मैंने कुछ भी नंबर ऐड किया 15 आया था, तो फिर इसका मतलब जो I की वैल्यू हो गया 7 ही हो सकता है, 15 आएगा। जब यहाँ 5 आया तो एक कैरी फॉरवर्ड 1 हुआ इसके ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये 7 बना, तो यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा होगा कि जिसमें 1 ऐड करने से 7 बन रहा है, तो हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। इन दोनों को ऐड करोगे तो पहले से 0 है, तो मतलब H की ऐसी कौन सी वैल्यू रहे कि उसमें ऐड करने से 7 बन जाए, तो इसका मतलब H 6 रहा होगा यहाँ पे, तो H की वैल्यू 6 आ गई। तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ और आ गई अब कि I = 7 है और H = 6 है। ठीक है, और D + G मेरे पास आ गया कि D + G मेरा 9 है, मुझे ये भी पता लग गया। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि कौन सी कंडीशन से ये 9 बन सकता है। तो मेरा 9 बन सकता है कि ये या तो 9,0 से 9 बन सकता है आपका, 8 + 1 से बन सकता है आपका, 7 + 2 से बन सकता है 9, और 6 + 3 से बन सकता है 9, और आपका
5 + 4 से 9 बन सकता है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं यहाँ पर कि डी और जी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 9 और 0 हो सकती है कि डी 9 हो जाए, जी 0 नहीं, फिर वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, तो ये हट जाएगी वैल्यू। क्या 8 और 1 हो सकती है? एफ पहले से ही 8 है, तो ये सारे डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो डी और जी में से कोई भी 8 नहीं हो सकता, क्योंकि एफ मेरे पास पहले से ही 8 है, आप यहाँ देख सकते हो, तो ये भी कट जाएगा। और मैंने आई को पहले से ही 7 निकाल लिया है, तो आई की वैल्यू मेरी 7 है पहले से ही, तो ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली मैंने एच की वैल्यू भी निकाल ली है, वो 6 है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सबकी वैल्यू डिस्टिंक्ट है। तो मेरे पास एक ही वैल्यू बच गई जो है 5 और 4, पर मुझे ये नहीं पता कि डी कॉमा जी में से क्या 5 है, क्या 4 है, या 4 है या 5 है। अब दोनों में से मेरे को भी पता नहीं है, वी नीड टू फाइंड दिस। ओके, गेटिंग? तो अब हम इसको फिर से देखते हैं कि मेरे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं कि ए बी इंटू सी डी मेरे पास आ गया है, या तो वो होगा 508, ओके, या ए बी इंटू सी डी आपका होगा क्या 408। ठीक है, हम इसको चेक करते हैं। तो अगर ये 5 है, ओके, समझ लीजिए कि आपका जो ये डी है ये 5 है, समझ लीजिए आप, फॉर एग्जांपल डी इज इक्वल टू 5। अगर मैं डी को 5 लेता हूँ तो यहाँ भी 5 आना चाहिए, तो ये क्या पॉसिबल है? देखते हैं, ए बी इंटू सी 5 आएगा, मतलब क्योंकि डी 5 था तो ये 508 हो जाएगा। पर ये 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि इसको इससे करेंगे, तो यहाँ पर ही आएगा। पर किसी भी नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 0 या 5 आना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो डी की वैल्यू है वो आपकी 4 है। ठीक है, डी की वैल्यू आपकी 4 है, इसका मतलब आपकी जो डी की वैल्यू है वो 4 है, 5 नहीं है। ठीक है, डी की वैल्यू 4 है, 5 नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी इंटू सी 4 इज इक्वल टू 408। तो अब मुझे फाइंड करना है ए बी सी। ठीक है, तो अब मेरे पास दो चीज़ें बची हैं, ए बी, तो मेरे पास इतना आ गया आपकी ए बी इंटू सी 4 इज इक्वल टू 408। ए बी इंटू सी 4 इज इक्वल टू 408, मेरे पास इतना आ गया है अपना। ठीक है, तो और जितनी भी वैल्यूज़ अब हमारे पास बची हुई हैं वो हैं आपकी ए, मतलब सारी वैल्यूज़ अब ले चुके हैं नंबर्स, जैसे कि आपका ई 0 हो गया, ये पहले से ही है, एफ आपका 8 हो गया, ठीक है, आई आपका 7 हो गया, एच आपका 6 हो गया, फिर आपका डी हो गया आपका 4 और जी आपका हो गया 5। तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ बची हैं? अब वैल्यू बची हैं 1 2 3 9। तो अब हमें ए और बी को ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करके 408 आ जाए। ठीक है, तो अब उसको करके देखते हैं कि पहले हम मान लेते हैं कि ए आपका समझ लीजिए 1 हो गया, बी आपका 2 हो गया, ठीक है, इनटू आप इसको 3 और 4 ले लो, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अगर ये आंसर। ओके, सो वी वर हियर
कि अब हमारे पास जो वैल्यूज बची हैं वो है 1, 2, 3 और 9। सो मैं यहाँ पे ए को 1 मान लेता हूँ, बी को 2 और सी को 3। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम, 12 इंटू 34। तो ये आपका आ गया 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4। दिस इज योर 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। जो आपका आएगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 8, ये आपका 0 और यहाँ कैरी आया 1, तो ये 4। 408 इससे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। तो हमें फाइंड करना है a प्लस b प्लस c। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 प्लस 2 इज 3 और 3, तो ये आपका आ जाएगा 6। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 6। ओके, नाउ दिस इज डन। So now we'll go to another question, that is question number 59. Question number 59. We'll go to question number 59. ओके, now we'll go to question number 59. रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 59 को आप। So you read question number 59. So it is said, consider a 3-digit number. Okay, 3-digit number को consider करें। Question is, what is the number? We have to find the number. The sum of the digits of the number is equal to the product of the digit. Okay, जो कि digit के sum से वो product के equal है। The number is divisible by sum of the digit of the number. Okay, जो number है वो sum of the digit of the number से divisible है। तो ये कहता है कि आप बताएं इसमें कि नंबर कौन सा होगा। ओके, तो the question can be answered using one statement alone but cannot be answered using other statement alone. The question can be answered using either a statement alone. The question can be answered using both the statement together but cannot be answered using statement one, either statement alone. The question cannot be answered even by using both the statement together. तो ठीक है, हमें 3-digit नंबर है ये पता है हमें, तो हम पहले देखते हैं इसमें। 3-digit नंबर कोई भी आपके पास है, समझ लीजिए ABC 3-digit नंबर था मेरे पास। तो ये कहता है कि आप फर्स्ट स्टेटमेंट से जाएंगे अगर हम, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। द सम ऑफ द डिजिट मतलब A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू आपका A इंटू B इंटू C, यही कह रहा है। तो मैं 3 डिजिट लेता हूँ, 3 डिजिट में लेता हूँ 1 2 एंड 3। तो आप ऐड कीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3, ये आपका आ जाएगा 3 प्लस 2 5 और 6, और 1 इंटू 2 इंटू 3 6, तो ये भी 6 आ जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पर अब मुझे देखना होगा कि इससे कितने नंबर बन सकते हैं। तो इससे नंबर बन सकते हैं आपके 1 2 3 बन जाएगा, एक बन जाएगा 1 3 2, फिर आपका बन सकता है नंबर 2 1 3, फिर आपका नंबर बन सकता है इससे 2 3 1, फिर इसका आपसे एक और नंबर बन सकता है 3 1 2, और एक और नंबर बन सकता है आपका 3 2 1। तो आप देखोगे कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई है, पर इससे सिर्फ एक नंबर नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर। तो ये सिंगुलर नंबर की बात कर रहा है, पर यहाँ बहुत सारे 3 नंबर बन रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को, सिर्फ इस स्टेटमेंट को यूज करके आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो दिस क्वेश्चन से द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। ये भी हम नहीं कह सकते। द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, ये आपका कट जाएगा क्योंकि आप 1 से इसको आंसर नहीं कर पा रहे हो। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। लेट्स सी, अभी अब आगे देखते हैं।
further it is saying that the number is divisible by the sum of the digits of the number. Okay, तो अब इसमें आप देखोगे कि 132 अगर हम लेते हैं स्टेटमेंट 2 के हिसाब से कि द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, स्टेटमेंट 2 के हिसाब से अगर हम ये चेक करते हैं 132 को, तो 132 को इसका सम ऑफ द डिजिट क्या होगा आपका 1 + 3 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 132/6 और ये इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। किसी और नंबर के लिए हो सकता है ऐसा? तो आप चेक करोगे कि 321 के लिए भी हो रहा है कि आप 312 के लिए भी हो पा रहा है वो कि 312 को आप 1 + 3 + 2 ये हो जाएगा 312 है बाई 6, ये गलत लिख दिया फिर से मैंने यहाँ, ये 312 भी से डिविजिबल है 6 से, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल हो रहा है। ये आप देख सकते हो कि 6 से डिविजिबल है, 6 5 = 30 और ये 6 2 = 12 यहाँ पे कट जाएगा, और ये भी 6 2 = 12 और 6 2 = 22 से कट रहा है, तो ये दोनों डिविजिबल हैं। तो पर ये फिर भी एक नंबर नहीं आ रहा है इससे, ठीक है। तो क्या हम दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें तो हो पा रहा है? फिर भी नहीं हो पा रहा। दोनों स्टेटमेंट यूज़ करके हमारे पास ये 2 आंसर आ रहे हैं और स्टेटमेंट 2 को यूज़ करके भी 2 आंसर आ रहे हैं। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द स्टेटमेंट कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट, ये भी गलत हो जाएगा आपका। बोथ स्टेटमेंट यूज़ करके भी नहीं हो पा रहा है, तो आंसर आपका डी आ जाएगा इसमें कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। इसको आप दोबारा देख सकते हो कि एक 3 डिजिट नंबर है, ABC हो गया, फिर वो कहता है कि नंबर फाइंड करना है आपको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मतलब A + B + C आपका A × B × C के इक्वल। तो 1 2 3 ले लोगे तो 1 + 2 + 3 6 हो जाएगा और 1 × 2 × 3 भी 6 होगा। तो इससे कितने नंबर बन सकते हैं इनको यूज़ करते हुए? आप देखोगे 6 नंबर बन गए। स्टेटमेंट 2 पर चलते हैं कि द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट। तो हमने इसमें देखा कि ये 132 और 312 ये 6 से डिविजिबल है और जो इसके सम ऑफ द डिजिट के इक्वल है, तो ये 2 स्टेटमेंट इसमें सेटिस्फाई होने पर एक कोई भी सिंगल नंबर नहीं मिल पा रहा हमें दोनों स्टेटमेंट को यूज़ करके भी, तो हमें इसका आंसर नहीं मिल सकता है बोथ स्टेटमेंट को यूज़ करने के बाद भी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका, इसमें हम चेक करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 46 को विजिट कीजिए, पढ़िए इस क्वेश्चन को। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 46 है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वैसे, पर फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, देयर इज नॉट दैट बिग एन इशू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस कैन आल्सो बी सॉल्व्ड। पर हम इसको थोड़ा सा अभी टाइम की कंस्ट्रेंट की वजह से इसको हम थोड़ा क्वेश्चन को हम इसको ब्रीफली सॉल्व करेंगे, ठीक है। Okay, so the question says let PP, QQ and RR be 2-digit numbers, ठीक है, where P is less than Q is less than R and PP into plus QQ plus RR is equal to TT0, where TT0 is a 3-digit number ending with 0. Consider the following. तो हमें ये दिया है कि अगर आप इनको ऐड कर, ये PP इंटू QQ प्लस RR प्लस TT को आप ऐड करोगे, ये RR इसी तो एक आएगा नंबर आपके पास 3 डिजिट TT0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10P प्लस P प्लस 10Q प्लस Q प्लस 10R प्लस R इज इक्वल टू TT0, बिल्कुल लिख सकते हैं हम ऐसे।
तो मेरा ये हो जाएगा पी वाली टर्म्स को ऐड कर देते हैं हम एक साथ, तो हो जाएगा 11p प्लस 11q प्लस 11r इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ये इसको भी आप लिख दो कि 100 इंटू टी प्लस 10t प्लस 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11 कॉमन ले लीजिए, p प्लस क्यू प्लस आर का उसमें t कॉमन लोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 1 0। तो ये आपका आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, बिकॉज 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10t, इजंट इट। ये आपका 10t आ गया, t0 आ गया, तो p प्लस क्यू प्लस आर आपका आ गया इज इक्वल टू t0। ये आ गया आपका t0 का मतलब है या तो ये नंबर आपका ऐसे की फॉर्म में होगा कि 10 20 30 इस किसी फॉर्म में होगा ये नंबर। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि अगर p प्लस क्यू प्लस आर ये 3 डिजिट हैं, ठीक है, तो ये मैक्सिमम कितना नंबर जा सकता है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू ले लीजिए कि p की अगर ये 7 था p और ये 8 था और ये 9 था, तो आपको कितना बनता है 15 सॉरी ये आपका 17 प्लस 7 ये आपका बन रहा है 24। ओके, बट मैक्सिमम वैल्यू 24 जा रही है इसकी, पर ये इस फॉर्म का नहीं है, तो जो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है इस वाली फॉर्म की वो 20 होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं, या तो p प्लस क्यू प्लस आर मेरे पास 10 होगा या फिर p प्लस क्यू प्लस आर मेरे पास 20 होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास ये सिर्फ दो कंडीशन ही पॉसिबल हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन से देखते हैं हम। तो अब ये कहता है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p इज़ 5, ओके, एंड नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q इज़ 6। ओके, ये चेक करना पड़ेगा अब मुझे इसके ऊपर। तो मैं देखता हूँ इसे, पहले मैं स्टेटमेंट नंबर 1 ले लेता हूँ, ये वाली सॉरी इक्वेशन 1। तो ये कहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ p इज़ 5। तो मैं पहले इक्वेशन 1 लेता हूँ, p प्लस क्यू प्लस आर इज़ इक्वल टू 10, और मुझे दूसरा ये पता है कि p इज़ लेस देन q इज़ लेस देन r। तो हमें इसको पुट करके चेक करना पड़ेगा अब इसको हर बारी। ठीक है, तभी आपके ये आंसर्स आएंगे। तो आप p को 1 मान ले लेते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो मुझे 10 बनाना है, तो समझ लीजिए q 2 था, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो 10 बन गया, तो p की एक वैल्यू आ गई। दूसरा p को मैं 2 ले लेता हूँ, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5, ये 10 बनेगा। तो फिर अब ये 3 अगर आप इसको ले लोगे तो आप बना ही नहीं पाओगे इसे 3, तो ये मतलब इसके ज़्यादा 4 होना चाहिए, तो 4 यहाँ 3 नहीं हो सकता, तो 10 नहीं बन सकता। यहाँ पे अगर 5 ले लोगे तो 8 बन जाएगा और 2 नहीं हो सकता, तो 2 के बाद की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन में पॉसिबल नहीं है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास p की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई, p की 2 वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 से चेक करता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मेरी है p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 20। ठीक है, जैसे मैं समझ लीजिए मैं p को यहाँ पर p को 1 ले लेता हूँ मैं, मुझे 20 बनाना है। तो अगर ये 8 हो जाता है
ये 9 होता है, तो ये क्या बनेगा आपका 17 + 1, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, पी को मैं 3 लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ से पी को 3 लेके देखते हैं एक बारी 20 बनाने के लिए। पी की वैल्यू 3 ले ली मैंने। ठीक है, उसके बाद अगर इसको 20 बनाना है मेरे को, तो मुझे मतलब अब 17 चाहिए। और तो 17 लाने के लिए मैं इसको 8 ले सकता हूँ और इसको 9 ले सकता हूँ, तो ये 20 बन जाएगा। तो ये वैल्यू पॉसिबल है पी की। मैं पी को 4 ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चाहिए 16। तो 16 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ 7 आ जाए और यहाँ 9 आ जाए, तो 16 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। अगर मैं पी को 5 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मुझे 20 बनाना है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ आपका 9 आ जाएगा, तो ये भी 20 हो गया। तो पी की 3 वैल्यूज़ और आ गई। पर अब अगर पी 6 ले लेते हैं, जैसे कि अगर पी 6 आता है तो 6 के बाद मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ 14, जो पॉसिबल नहीं है बनाना, क्योंकि यहाँ 5 आएगा फिर और वो पी से छोटा हो जाएगा। तो पी की यहाँ से 3 वैल्यूज़ आती हैं, पी की 3 वैल्यूज़ आ गई। तो हम कह सकते हैं कि पी की 5 वैल्यूज़ हैं। पी की यहाँ से 2 वैल्यूज़ आई, सॉरी पी की यहाँ से आपकी 2 वैल्यूज़ आई और पी की यहाँ से 3 आई, तो पी की 5 वैल्यूज़ हो गई। बिल्कुल ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पी इज़ 5 इज़ करेक्ट, ये वाला आपका सही है। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देखना पड़ेगा इन तीनों में से कौन सी सही है। अब हमें चेक करना पड़ेगा क्यू के लिए। ठीक है, क्योंकि पी का तो हो गया, पी का हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं। हम क्यू को चेक करते हैं कि क्यू की कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं यहाँ पर। ठीक है, चेक करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लो कि फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास P + Q + R = 10। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। तो P की वैल्यू तो 1 हो सकती है, पर Q की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि P > Q, और हमें Q की वैल्यूज़ को चेक करना है कि Q हमेशा बड़ा होगा। तो 1 तो नहीं हो सकती Q की वैल्यू, क्योंकि P 1 हो गया तो Q 1 नहीं होगा, क्योंकि P उससे बड़ा ही, Q उससे बड़ा ही होगा। तो इसको 2 लेके देखते हैं। तो अगर ये 1 था और ये 2 था मेरे पास, तो आपका ये R 7 आ सकता है, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 2 लेता हूँ P को, Q को 3 लेता हूँ, तो यहाँ 5 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब मैं इसको 3 लेता हूँ, इसको 4 लेता हूँ, तो आपका है 4 + 3 7। अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, यहाँ इसको 4 लेते हैं, तो यहाँ 5 आ सकता है, तो ये भी 10 हो गया। तो ये अब 5 के बाद नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर हम इसको 5 लेते हैं तो हमें इसको 4 लेना पड़ेगा और यहाँ 5, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो P की Q की इसका मतलब 3 वैल्यूज़ हैं, Q की 3 वैल्यूज़ ही पॉसिबल है, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं है। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। P + Q + R = 20। ठीक है, तो 20 बनाने के लिए अगर मुझे चाहिए तो समझ लीजिए मैंने इसको 6 लिया, मैं इसको 6 लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे इधर और इधर का सम बना के क्या करना पड़ेगा, 20 बनाने के लिए 14 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया और ये आपका हो गया 9। तो 9 + 5 14 + 6 = 20। तो ये Q की वैल्यू पॉसिबल है। अब Q की वैल्यू समझ लीजिए मैंने यहाँ 7 ले ली, 6 तो मैं ले ही चुका हूँ, तो मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा 13। ठीक है, तो 13 बनाने के लिए मुझे इसको 4 करना पड़ेगा और इसको 9 करना पड़ेगा, तो ये भी पॉसिबल वैल्यू है। अब मैं Q की वैल्यू ले लेता हूँ 8, तो मुझे 8 है तो मुझे 12 बनाना है, तो मैं यहाँ इसको 3 ले सकता हूँ 9,
तो ये भी पॉसिबल है। अब इसके बाद वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ 9 आ गया अगर, तो ये उससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि क्यू की 3 वैल्यूज़ हैं। तो क्यू की 3 वैल्यूज़ यहाँ आ गई और 3 वैल्यूज़ यहाँ आ गई, तो टोटल 6 वैल्यूज़ हो गई। तो इसका मतलब क्यू की भी पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज़ है 6, तो ये सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, both the statements 1 and 2 are correct. Okay, so now we are here done with the 2023 paper. Now we'll move on to the question paper of 2021. Okay, 2021 क्वेश्चन पेपर को हम खोलेंगे अब यहाँ पर और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गेटिंग? सो 2021 पेपर सेट ए आप निकाल लीजिए और हम इसको सॉल्व करते हैं। 2022 में कोई भी क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से रिलेटेड हमें नहीं आया है, तो अब हम 2021 का पेपर निकालेंगे और उसको थोड़ा क्विकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2021 का निकालिए, इसमें निकालिए क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 निकालें। इसमें क्वेश्चन नंबर 36 आपका इसमें आएगा 2022 में क्वेश्चन नंबर 36। ओके, सो वेट 22 में भी क्वेश्चन आया है। फिर 22 निकालते हैं, रुकिए। 22 में भी क्वेश्चंस हैं, वेट कीजिए। तो पेपर आप निकालें 2022 का, सॉरी 2022 का क्वेश्चन पेपर आप निकालो इसमें। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर 54 निकालो। क्वेश्चन नंबर 54, 2022 क्वेश्चन नंबर 54 निकालें आप। रीड करो इस क्वेश्चन को, 54 को। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 54, टेक आउट क्वेश्चन नंबर 54 and try to read this question. The question says, if A, B, C represent distinct non-zero digit and suppose X is the sum of all possible 3 digits number formed by A, B, C without repetition. ठीक है, consider the following. The least value of X is 1132. ये कहता है ये। ठीक है, and the 3-digit greatest value of X is this. So the question is, let A, B, C represent distinct non-zero digit. Suppose X is sum of all possible 3-digit number formed by A, B, C. ठीक है, चलिए। तो हमारे पास दिया है कि 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं, A, B, C। ठीक है, हम इसको ले लेते हैं 1, 2, 3। अब ये कहता है कि सपोज एक्स इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट। अगर 3 ही डिजिट्स है ना हमारे पास, तो पॉसिबल नंबर ऑफ नंबर कितने बन सकते हैं आपके पास? सबसे पहली डिजिट के पास 3 ऑप्शंस हैं,
दूसरी डिजिट के पास 2 ऑप्शन हैं, उससे अगली के पास 1 है, तो 6 नंबर्स बन सकते हैं आपके पास। तो 1 2 3 को यूज़ करते हुए 6 नंबर बना के देखो। नंबर आपके बनेंगे 1 2 3, ठीक है। फिर आपका बनेगा 1 3 2, फिर आपका बनेगा 2 1 3, फिर आपका बनेगा 2 3 1, फिर आपका नंबर बन जाएगा 3 1 2, फिर आपका नंबर बन जाएगा 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो बाद से बात करते हैं, कहता है ABC रिप्रेजेंट 3 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। मुझे पता नहीं वो डिजिट कौन सी है, मैंने सपोज कीजिए डिजिट्स को ABC मान लिया। अब अगर 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं तो उनसे कितने नंबर बन सकते हैं? जो पहला, जैसे कि 3 डिजिट नंबर बन गया, समझ लीजिए ऐसे एक 3 डिजिट नंबर को बना लेते हैं जिसमें यहाँ डिजिट आ जाएंगे उस नंबर की। तो जो पहली डिजिट है उसके पास कितने ऑप्शन है? उसके वो तीनों नंबरों में से कोई भी ले सकती है। अगली डिजिट के पास एक इसने ले लिया क्योंकि तो अगली वाले के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होंगे, फिर उससे अगली बार 1, तो इनको मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपके पास 6 नंबर बन जाएंगे। तो 1 2 3 को यूज़ करते हुए समझ लीजिए मैंने इतने 6 नंबर बन लिए। तो अभी क्या कहता है कि अगर लीस्ट, देखो इनका सम अगर लीस्ट करना है मुझे, ठीक है, तो ये जो नंबर बन रहे हैं 6, इनका अगर सम मुझे लीस्ट करना है जो कि x है, तो इसके लिए मुझे 1 2 3 लेनी पड़ेंगी क्योंकि वो सबसे छोटी डिजिट्स हैं, तो तभी बन पाएगा वो, ठीक है। और ये नॉन ज़ीरो बोल रहा है, ऊपर से ज़ीरो आएगा ही नहीं, तो 1 2 3 लीस्ट है। तो 1 2 3 को यूज़ करते हुए 6 नंबर बन गए। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं कि क्या ये आ सकता है। ऐड कर लो इसे। तो 122, तो आप ऐड कर लीजिए 123 प्लस 132 प्लस 213 प्लस 231 प्लस 312 प्लस 321। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1332। तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ x इज दिस। x क्या है? x है इन सब का सम, इन सबको ऐड कर दोगे तो आपको x मिल जाएगा, ठीक है। जो लीस्ट करना है, अगर लीस्ट करना है तो मुझे 1 2 3 का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे छोटे डिजिट है, तभी आ पाएगा वो लिस्ट, ठीक है। अभी कह रहा है कि द 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्सिस। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो सबसे कम वाले नंबर हैं वो 1 2 3 को ही यूज़ करके बन सकते हैं, और उन सब का सम पहले ही 1 1 2 3 आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट 8 8 8 तो हो ही नहीं सकता। तो ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ए ओनली इसका आंसर है। गेटिंग? नाउ यू टेक आउट क्वेश्चन नंबर 66। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 निकालो आप इसी का। You can see that you are easily able to solve this question. No issues are there. Okay. Question number 66. Try to read it and then we'll solve it. So question number 66 is like this. Okay. So it says that let P be a 2-digit number and Q be a number consisting the same digits written in reverse order. If PQ is equal to 2430, then what is the difference between P and Q? Okay, what is the difference between P and Q? It is asking you that. तो आपको P को मैं मान लेता हूँ, जैसे आपने इसको मान लिया AB, तो Q आपका हो जाएगा B, ठीक है। एंड P इंटू Q मुझे दिया हुआ है 2430 पहले से ही, तो P मेरा हो गया 10A प्लस B और Q मेरा हो गया 10 इंटू B प्लस A, इजंट इट? अब ये कह रहा है कि P को मैंने Q से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2430। इसका मतलब यहाँ पर 5 होगा क्योंकि पीछे अगर ज़ीरो लाना है आपको तो यहाँ पे 5 होना कंपलसरी है, तभी वो ज़ीरो आएगा। क्योंकि किसी भी नंबर में 0 या 5 लाने के लिए उसकी यूनिट रेट में 0 या 5 होना चाहिए, वो सॉरी 5 होना चाहिए, तो यहाँ ये 5 होगा।
तो मैं लिख सकता हूँ इसको सिंपली कि P हो जाएगा मेरा 10A + 5 और Q हो जाएगा मेरा 50 + A। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो। 50A + 5 इज इक्वल टू 10A + 5 इज इक्वल टू 50 + A इज इक्वल टू 2430 आपका। तो ये आपको हो जाएगा 500A + 10A² + 250 + 5A इज इक्वल टू 2430। गेटिंग? तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो फर्दर कि 2A² + 101A - 436 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि A कॉमन ले लो, तो आपको आ जाएगा 2A + 10 1 - 4 × 2A + 10 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका आ जाएगा A - 4 और ये वाली यूनिट जो है 2A + 101 इक्वल टू 0। तो आपका A इज इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपका A अगर 4 आ गया तो इसका मतलब P आपका हो जाएगा 45 और Q आपका हो जाएगा 54। तो आपका डिफरेंस आ जाएगा Q - P इज इक्वल टू 9। ओके, तो आपका आंसर है डी इसमें। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस वॉज अ वेरी easy question. So thank you, officers. Today here we are done with the 2024, 23 and 22 PYQs related to the questions of A into 10 plus B types. In the next video we'll continue with the 2021 and 20 papers. Keep studying. Have faith in yourself. You will definitely clear the CSAT. Thank you.